Hello everyone. We three are there right now. और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे. So, welcome you all to the hike program. I've started this hike program at 1 p.m. daily, and this program focuses on the Hindu Yojana, Kurukshetra primarily, and Indian Express again. So, the hike program focuses on Hindu Yojana, Kurukshetra, and Indian Express. Today, I'm giving you a topic, I'm giving you information, or you say a little bit insights on article from Kurukshetra. Okay. आज हमने जो उठाया है आर्टिकल दैट इज फ्रॉम मे कुरुक्षेत्र. मई मंथ की जो कुरुक्षेत्र मैगजीन आई थी, ठीक है, वहां से मैंने उठाया है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3 एज वेल एज जीएस पेपर 1. ठीक है, तो वन हालांकि मैंने दिया नहीं है इसमें. तो जीएस पेपर 3 एंड 1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. Some of the environmental aspects are also covered in this topic, and this topic is organic farming. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काफी फोकस था मई 2019 की योजना में. और काफी सारे आर्टिकल्स इसमें मुझे मिले. और कुछ आर्टिकल्स को मैंने कंपाइल कर दिया है. ठीक है, 3 आर्टिकल्स मेरे को काफी अच्छे लगे, और उन तीनों को मैंने एक तरह से कंबाइन करके कंपाइल करके आपके सामने रखा है. So what all headings we'll study today? We'll see organic farming under these headings. 7 headings are there. First of all, the concept. What is the concept of organic farming? Next is the present status of organic farming across the world and in India. Third one is the principles. Are the principles involved in organic farming? On what principles it works? So it is relatively very important for your answer writing in mains. Then characteristics, again very important for the answer writing in mains. What are the characteristics? How the organic farming behaves in the economy of rural areas and agriculture. Next one is components of organic farming. What all are the components, ingredients of organic farming in India? Next one, opportunities in organic farming, right? To make it futuristic, to make it economically viable, you always need a good opportunity in whatever field you are working in, right? Economic opportunities, future scope, employment, all these things are very necessary to prove any particular activity in the economics to be, opportunistic, right? And next one is constraints. So constraints, or you can call them challenges also, right? So few challenges also are there with regard to the organic farming in India, especially uh, in the mainstream agriculture in the Ganga Plains or Deccan Plateaus. वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, बिकॉज कन्वेंशनल फार्मिंग इतनी ज्यादा इम्बाइडेड है और इतनी ज्यादा यूज है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस्ड है कि किसी नई फार्मिंग टेक्निक को लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सो विल डिस्कस ऑल दीज इश्यूज. First, any one of you can tell me I'm clearly audible. Am I audible clearly? Okay, okay. Then I must first start with the concepts. Concept में क्या है, organic farming है क्या चीज? It is a simple definition अगर आप देखें, और बहुत लोगों को शायद पता भी होगा. Organic farming, as the name suggests, system of organic farming is based on intimate understanding of nature's law and rules, right? So अगर आप natural farming की बात करें, या zero budget natural farming की बात करें, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, तो बहुत ज्यादा जो नेचर के क्लोज होती है, जो बहुत ज्यादा नेचर के लॉज को फॉलो करती है, that is basically organic farming, right? So follows the nature's rules and laws. Next is the method of farming system, which primarily aims to cultivating the land and raising crops in such a way as to keep soil alive, right? Soil alive, good health by the use of organic wastes and other biological materials along with beneficial microbes, right? These are fertilizers. तो beneficial microbes जो already soil के अंदर होते हैं, हमने कुछ और ऐड नहीं करना है,
हमको उन्हीं को एनर्जाइज करना है, उन्हीं माइक्रोब्स को एक्टिवेट करना है, और बायोलॉजिकल मटेरियल्स लाइक मेन्योर्स, काउ डंग वगैरह का यूज करना है। ठीक है। हेल्थ ऑफ सॉइल, इकोसिस्टम एंड पीपल, तो सस्टेनेबल ऑन ऑल दीज थ्री बेसिस, सस्टेनेबल सॉइल, सस्टेनेबल इकोसिस्टम एंड बेनिफिट्स फॉर द पीपल, राइट। तो लोगों को भी सस्टेन इकोनॉमिकली और फिजिकली सस्टेनेबल लाइफ बहुत जरूरी है, उसको सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। If you see the present status, you'll see it is being practiced in over 170 countries, covering three total areas of 3 30.4 million hectares, 0.65% of the world total agricultural land, right? तो इतना बड़ा आपके पास अभी नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में कल्टीवेबल लैंड, बट यस इट इज ग्रोइंग। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए डेटा है, इंडिया रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स, इंडिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स है, एंड नाइन्थ इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है। एरिया के अगर टर्म्स में बात करें तो सब नाइन्थ स्टेप हमारा लेवल पे आता है, रैंक पे आता है हमारा एरिया। इंडिया रैंक 11th इन दी ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स इन 2015, तो हमारा रैंक 11th है एक्सपोर्ट्स में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स में रैंक 11th है। अभी इसके बारे में भी देखेंगे कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी आर ऑन द 11th रैंक डिस्पाइट ऑफ बीइंग फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स। पहले नंबर पे अगर हमारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स हमारे देश में हैं, फिर भी हम 11th क्यों है एक्सपोर्ट्स में, राइट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज एंटायरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, सारा का सारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम पे बेस्ड है, यानी फर्म जो कंपनीज हैं वो फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनीज और फार्मर के बीच में डील होती है, दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और उसका प्रोडक्ट सीधे कंपनी को भेज देते हैं। ठीक है। Merely 0.4% of the total agricultural land is under organic cultivation। ठीक है। तो हमारे देश के अंदर 0.4% ही लैंड ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के अंडर में आता है। उसमें अगर आपने, अब सभी ने सुना होगा सिक्किम, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सिर्फ एडिबल सेक्टर तक नहीं है प्रोडक्शन हमारा, बट ऑर्गेनिक कॉटन फाइबर, फंक्शनल फूड प्रोडक्ट्स हमारे पास और भी है, राइट। तो ऑर्गेनिक सिर्फ ऐसा नहीं कि खाने का सामान प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें आपका कॉटन फाइबर भी है, और भी फाइबर्स कुछ कुछ ऑर्गेनिक से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वास्ट स्केल यानी कैश क्रॉप्स भी इसके अंदर आ रही है, राइट। नाउ थर्ड हेडिंग वाज प्रिंसिपल्स। नाउ व्हाट आर दोस प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक में फर्क है। ठीक है। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो ट्राई टू राइट प्रिंसिपल्स, बिकॉज दिस लुक्स मोर स्टडीड एंड मोर लर्नेड। मतलब अगर आप प्रिंसिपल्स लिखते हैं तो आप शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग को मल्टी डायमेंशनल वे में देख पाए हैं, ये दिखाता है आपके आंसर में, राइट। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया, सस्टेनेबल सॉइल, वाटर, एयर, एनवायरनमेंट, एनिमल, ह्यूमंस एंड प्लांट्स एज वन एंड इनडिविजिबल, राइट। तो इसमें क्या है, सब सस्टेनेबल, सॉइल भी होगी, वाटर भी होगा, एयर भी होगी, एनवायरनमेंट भी सस्टेनेबल चलेगा। सो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी हेल्थ को फोकस करा जाता है इसमें। जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सबके लिए वायबल होंगे। इसको हम अलग अलग करके देखेंगे नीचे में, कंपोनेंट्स में जाएंगे जब, तो कैसे सॉइल के लिए सस्टेनेबिलिटी हो रही है, कैसे आपकी एयर के लिए हो रही है, कैसे वाटर के लिए हो रही है, व्हेन वील सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, अगेन इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए वायबल है, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए वायबल है, बायोडाइवर्सिटी के लिए वायबल है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी भी इसमें फुलफिल होता है, राइट। तो जितने भी हमारे साइकिल्स हैं, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, जितने भी एनवायरमेंटल साइकिल्स हैं, उनके लिए, सबके लिए फिजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। नाउ कॉमन एनवायरनमेंट एंड लाइफ अपॉर्चुनिटीज, अभी इसमें प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस कहां से आता है। इफ यू सी द कन्वेंशनल फार्मिंग, वहां पर जो रिच फार्मर है इन कन्वेंशनल, इट इज नॉट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म लाइक दैट ऑफ अ स्मॉल फार्मर। ठीक है। बट इन दी ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिच फार्मर एंड स्मॉल फार्मर और आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। जैसे कि
अगर जितने इनपुट्स आपके रिच फार्मर के पास ऑर्गेनिक के केस में होंगे, उसी के आसपास उतने ही इनपुट्स आपके पास जो स्मॉल फार्मर होगा उसके पास भी होंगे। व्हाई? बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा बाइंग नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सटर्नल इनपुट्स का यूज नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं है। दैट इज वाई रिच फार्मर और स्मॉल फार्मर्स बराबर बराबर के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, राइट? सो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इज ऑल्सो देयर। Next is principle of care. Organic farming should be managed in precautionary and responsible manner to protect the health and well-being of current and future generation on the and the overall environment. Right. So how precautions can be taken? Like precautions can be taken for the groundwater filtration. कैसे आपका ग्राउंड वाटर बेटर एनर्जाइज हो सकता है, कैसे आपके एक्विफर्स बेटर एनर्जाइज हो सकते हैं, कैसे वो पॉल्यूटेंट फ्री हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रिंसिपल ऑफ केयर में आती है, राइट? तो सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए कैसे आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केयर। ठीक है, नेक्स्ट वन विल गो टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ what are the characteristics? If you start with the first thing is soil fertility. Now how you can increase the soil fertility? First is crop rotation. आप सबसे पहले क्रॉप रोटेशन करिए। क्रॉप रोटेशन मतलब एक ही सिंगल लैंड पे इन अ साइकिल फॉर्म, एक साइक्लिक फॉर्म में आप अलग अलग क्रॉप्स लगाएं, राइट? तो एक सिंगल लैंड पे यू कैन डू मिक्स क्रॉपिंग ऑल्सो, मिक्स क्रॉपिंग भी हो सकती है, एंड यू कैन गो फॉर क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो दैट इज सस्टेनेबल अगेन। हाउ क्रॉप रोटेशन इज सस्टेनेबल? You are going first of all with the organic practices. Organic practices in association with crop rotation. So what this will give you? This will give you a longer soil life, right? A longer soil life. It will reduce erosion. ठीक है, अगर आप क्रॉप रोटेशन करते हैं यानी एक सीजन में आपने एक क्रॉप लगाई, उसके बाद उसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप लगाई है, राइट? इफ यू गोइंग फॉर व्हीट, अगर आपने एक सीजन में व्हीट लगाया तो उसके बाद आप कोई पल्सेस लगा दीजिए ताकि फिर से सॉइल जो है रिजुमिनेट हो जाए। ठीक है, लेग्यूमिनस क्रॉप से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो जो सॉइल का खोया हुआ नाइट्रोजन है, जो उसके अंदर जो एनर्जी है, वो वापस आएगी, राइट, बाय लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो इस तरह से आप सॉइल को रोटेट, जो क्रॉप है उसको रोटेट कीजिए अपने लैंड पे, जिससे हर क्रॉप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, राइट? इट विल रिड्यूस सॉइल इरोजन, देन इट विल improve the soil structure। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, राइट? सॉइल स्ट्रक्चर यानी कहाँ पर आयरन कंटेंट ज्यादा है, पानी का लेवल कितना है, राइट? और रॉक्स जो सॉइल के नीचे हैं वो कितनी जल्दी उनका वेदरिंग हो रहा है, ये सारी चीजें देखने वाली होती है, राइट? नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और वाटर रिटेंशन आर आल्सो द रिजल्ट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग, राइट? नेक्स्ट वन इज improved water quality। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज improved water quality। ये क्या है? एक बहुत खास चीज होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट रिटेंशन होता है। मैक्सिमम न्यूट्रिएंट रिटेंशन यानी जो क्रॉप होती है, जो भी प्लांट होता है, उसके अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन होता है। यानी जो भी आप मैन्योर लगा रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप फीड कर रहे हैं, जो क्रॉप है, जो प्लांट है, वो उसको मैक्सिमम अब्जॉर्ब करेगा, यानी कुछ छोड़ेगा नहीं। और उसका एब्जॉर्प्शन डिलेड भी होता है, उसका एब्जॉर्प्शन ग्रेजुअल होता है। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पानी में यानी ग्राउंड वाटर में जाते नहीं है। जब सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा तो देयर वोंट बी एनी न्यूट्रिएंट लेफ्ट फॉर द ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर में कोई न्यूट्रिएंट जाएगा नहीं, इसलिए ग्राउंड वाटर पॉल्यूट नहीं होता है, राइट? ग्राउंड वाटर पॉल्यूट नहीं होगा। सो
मैक्सिमम न्यूट्रिएंट रिटेंशन जब ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है तो ग्राउंड वाटर पोल्यूट नहीं होता है और वाटर क्वालिटी यानी जो आपका नीचे पानी है ग्राउंड वाटर उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, राइट। दिस इज द केस ऑफ वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, अगर आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट होंगी, राइट, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आप यूज करते हैं, जितना भी आप यूज से अगर आप आर्टिफिशियल इरिगेशन भी करते हैं तो भी आप फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। अगर आप ट्यूबवेल चला रहे हैं, अगर आप बिजली से कोई भी यूज कर रहे हैं पानी का इरिगेशन करने का, स्प्रिंकलर्स भी चला रहे हैं लेट्स सपोज, तो उसमें भी आप फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस पावर, तभी आपका ट्यूबवेल चलेगा। तो फॉसिल फ्यूल्स का अगर यूज कम होगा तो ग्रीन हाउस गैसेस भी कम एमिट होगी, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट होगी। दूसरा, अगर आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं तो यू विल हैव लेस ऑफ अमोनिया, दैट मीन्स नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन या अमोनिया का एमिशन होता है हवा के अंदर वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज जो भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन क्रॉप में कम होता है बल्कि एनवायरनमेंट में उनका एमिशन ज्यादा होता है। तो अमोनिया का एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उसमें एनवायरनमेंट में या हवा में ज्यादा होता है या क्रॉप में ज्यादा, सॉइल में ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ता है और ग्रीन हाउस गैसेस और वेरियस ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का एमिशन बढ़ जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस और ग्रीन हाउस गैसेस दोनों का ही एमिशन कम होता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे फर्क पड़ेगा, यानी क्लाइमेट आपका और जो चेंज हो रहा है उससे आप बच जाएंगे। और एनर्जी का यूज, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उतना ज्यादा, नेचुरल फार्मिंग में आपको उतना ज्यादा इरिगेशन यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फर्टिलाइजर्स आर्टिफिशियल नहीं यूज करते हैं, आप काउ डंग या फिर मेन्योर्स का यूज करते हैं, तो पानी की जो डिमांड होती है क्रॉप की वो कम हो जाती है। जब बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो क्रॉप में जो पानी की डिमांड होती है बढ़ जाती है। पानी की डिमांड बढ़ेगी तो आपको आर्टिफिशियल इरिगेशन यूज करना पड़ेगा, ट्यूबवेल, टैंक्स, और इसके लिए आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, जो एनर्जी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंपैरेटिवली कम कंज्यूम करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ व्हाट इज दैट प्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो जो वर्म्स हैं, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, जो छोटे छोटे मैमल्स जो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ हैवी फर्टिलाइजर्स, हार्मफुल फर्टिलाइजर्स, जो मर जाते हैं, राइट। तो वो आपके वापस से जर्मिनेट करने लग जाते हैं इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। तो बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिनका यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके सॉइल को और फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे मैमल्स जैसे जो चूहे होते हैं वो भी डिगिंग करते हैं, पॉट होल्स बनाते हैं छोटे छोटे। तो उससे भी क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो ज्यादा काम करते हैं, और अगर आप फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो मर जाएंगे, राइट। सेम इन द केस ऑफ फ्लोरा। अगर आप पेस्टिसाइड्स बहुत यूज करेंगे या फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो जो वीड्स होती हैं, जो भी बहुत काफी वीड्स ऐसी होती हैं जो कि यूजफुल होती हैं, वो भी मर जाती हैं। तो वीड्स भी एक तरह से बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि वीड हार्मफुल है हर जगह पे या वीड यूजफुल नहीं है तो वो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वीड्स का भी कल्टीवेशन होता है और बहुत जगह पर वीड्स भी कंज्यूमेबल होती है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी चीजें आती हैं। एक और एग्जांपल है लाइक म्यूल्स, जिनको हम खच्चर बोलते हैं, डोंकीज, म्यूल्स, ये भी दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आप मशीन्स का यूज नहीं करते हैं, लेट्स से ट्रैक्टर्स का यूज नहीं करते हैं, एंड यू गो फॉर द एनिमल्स, विद एनिमल्स एंड प्लो द फील्ड, अगर आप जो पहले करते थे मेडिवल पीरियड में और बहुत पुराने टाइम में, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। और म्यूल्स और इन सब की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बेसिकली, ये लोग, ये जितने भी एनिमल्स हैं ये बाहर फेंके जा रहे हैं एग्रीकल्चर से, तो इसलिए इनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। तो अगर आप इनका यूज करना शुरू करेंगे, छोटे फार्म्स पे छोटा फार्मर भी यूज करेगा तो कहीं ना कहीं उससे फर्क पड़ेगा, राइट। देयर आर वेरियस अदर वेज इन विच बायोडाइवर्सिटी कैन इंक्रीज, वाइल्ड लाइफ इंक्रीज होगी इससे, बिकॉज ऑफ द नेचुरल, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए, उसके बाद विल सी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट से पहला कंपोनेंट है क्रॉप रोटेशन। नाउ व्हाट इज दैट क्रॉप रोटेशन?
क्रॉप रोटेशन के ऊपर मैंने बात की है। क्रॉप रोटेशन इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, राइट? इट्स अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स इन मोर और लेस द सेम फार्म, राइट? इन अ सीक्वेंस, राइट? तो अगर आप ज्यादा एक से ज्यादा क्रॉप उगाते हैं ऑन द सेम फार्म इन अ सीक्वेंस, the sequence you have to decide which sequence will be better for your land, for your soil and for your economy. ठीक है, so that sequence should be decided by the individual farmer on the land basis. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप रेसिड्यू क्या है? जितना भी हमारा वेस्टेज होता है, फार्म वेस्टेज होता है, लेट्स से स्ट्रॉज होते हैं, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रॉ निकलता है व्हीट पे से, बहुत अलग अलग क्रॉप्स में से अलग अलग स्ट्रॉ निकलता है जो वेस्ट होता है, जिसका यूज नहीं होता है, जो हम कंज्यूम नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम जो वेस्टेज होता है फार्म का, वो उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है, ऑलमोस्ट 60% पार्ट जो होता है उसका, जो क्रॉप वेस्टेज होता है उसका 60% पार्ट हम लोग लाइफ स्टॉक को देते हैं, यानी हम लोग लाइफ स्टॉक फीडिंग में यूज करते हैं। अब बचा हुआ जो 50% 40% जो वेस्टेज है, उसका हम क्या कर सकते हैं, राइट? सो दैट कैन बी यूटिलाइज टू रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स। तो जो बचा हुआ वेस्टेज है, दैट इज ऑलमोस्ट 40% टू 50%, जो क्रॉप वेस्टेज है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसको हम फार्म में उसका हम मैन्योर बना सकते हैं। उसका जो कैटल डंग है या कैटल पीसेस है, जिनको जो हमारा गांव में बहुत अवेलेबल होता है, उसके साथ मिक्सअप करके उसको हम अपने लैंड पे डाल सकते हैं जस्ट आफ्टर द क्रॉप, और उससे वापस से न्यूट्रिएंट्स सॉइल के रिचार्ज होते हैं। ठीक है, तो क्रॉप रेजिड्यूज का भी यूज है। देन मैन्योर। मैन्योर इज बेसिकली द एनिमल डंग। एनिमल डंग जो होता है, जो कैटल का डंग होता है, पीसेस होते हैं, उनको सुखाकर या उनको सेमी ड्राई फॉर्म में यूज करना विद द फार्म वेस्टेज जो हम बनाते हैं। इट एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर, समटाइम्स इट एक्ट्स एज अ पेस्टिसाइड आल्सो, राइट? तो वो एक तरह से मेन्योर हमारा काम करेगा और कंपोनेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, राइट? इट्स अ बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आपने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को अपनी कन्वेंशनल फार्मिंग से हटा दिया है, तो यू आर ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब 70% आप ऑर्गेनिक हो चुके हैं। ठीक है, तो मेन्योर्स, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, एनिमल वेस्टेज विद द एग्रीकल्चरल वेस्ट, उसको आप मिक्सअप करते हैं, उसका आप स्लरी बनाते हैं, या फिर वैसे ही यूज करते हैं, ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं और अपने खेतों में डालते हैं। तो दैट इज मैन्योर। अब इसके में दो तरह के मैन्योर्स होते हैं। वन इज बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। जैसे मैंने बताया, अगर आप ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं मैन्योर को, यानी काउ डंग के साथ आपने मिलाया या एनिमल डंग के साथ आपने मिलाया फार्म वेस्ट को, और उसको बहुत ज्यादा आपने क्या बोलते हैं, क्योंकि आपके पास एनिमल वेस्ट भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है और आपके पास फार्म वेस्ट भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इसको आप बड़े एरियाज में मिलाते हैं, मिक्सअप करते हैं और स्प्रे कर देते हैं या फिर उसको स्प्रेड कर देते हैं। उसको बोलेंगे आप बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, राइट? सो इट कैन बी अ कंपोस्ट मैन्योर ऑल्सो। कंपोस्ट भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है। ग्रीन मैन्योर यानी बहुत ज्यादा अगर पत्ते गिरते हैं, कहीं पेड़ बहुत ज्यादा है, पत्ते गिरते हैं, आपने पत्तों को इकट्ठा कर लिया, पेड़ों के पत्तों को, उनको स्लरी बना लिया, उनको सुखा लिया और उसके बाद पानी में ऐड करके उसका स्लरी सा बना लिया फर्मेंटेशन के बाद, वो भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है प्लांट के लिए। तो कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट जो ही आपका मैन्योर मैंने आपको बताया, काउ डंग और एनिमल डंग जितना भी है, तो उसको मिलाकर आप बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हैं। ये बल्क में होता है, क्वांटिटी बहुत लार्ज होती है, राइट? नेक्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है, यू जनरली यूज ऑयल केक्स। ठीक है, ऑयल केक्स यानी कॉटन ऑयल सीड्स, जो कॉटन के जो सीड्स होते हैं उससे भी आप ऑयल केक्स बनाते हैं। मस्टर्ड सीड से आप ऑयल केक बनाते हैं। जो मस्टर्ड का जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो आप बेसिकली तेल निकालने के बाद फेंक देते हैं, उससे भी आप केक्स बनाते हैं। ठीक है, तो फिश मील होता है, मीट मील होता है, राइट? बहुत सारे हैं। फिश मील होता है, मीट मील होता है, ठीक है, बोन मील जिसको बोलते हैं। ये सारे कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स होते हैं। इनकी क्वांटिटी कम होती है, ये छोटे होते हैं दिखने में, इनकी क्वांटिटी कम लगती है, पर इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, राइट? तो
दो चीजें हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। नेक्स्ट थिंग हम आते हैं वेस्ट पे। तो जो अगला कंपोनेंट है दैट इज वेस्ट। ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियल वेस्ट है इसमें, एंड यू हैव म्युनिसिपल एंड सीवेज वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी हमारा इंडस्ट्री से सीवेज निकलता है, बहुत सारा ऐसा होता है जो न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है, बट उसमें सेलेक्टिव फीडिंग बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव सेलेक्टिव फीडिंग इन इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट में, अगर जैसे जनरली हम लोग वेस्ट वाटर यूज करते हैं, अभी आप इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें हार्मफुल केमिकल ज्यादा होंगे। अगर आप उसको अपनी क्रॉप में स्प्रे करते हैं या पानी को इरिगेशन में यूज करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपकी क्रॉप में चला जाएगा और बायो मैग्निफिकेशन के तहत वो धीरे धीरे आपके पूरी फूड चेन में आ जाएगा। राइट। तो सेलेक्टिव फीडिंग जरूरी है। कुछ खास इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां से जो वेस्ट निकलता है वो ऑर्गेनिक क्वांटिटी में होता है, जिसके अंदर ऐसे मिनरल्स होते हैं जो न्यूट्रिशियस क्रॉप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेदर, राइट, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनका जो वेस्ट भी होता है वो फार्म में यूज हो सकता है एंड कैन गिव न्यूट्रिशन टू क्रॉप्स। नेक्स्ट इज म्युनिसिपल एंड सीवेज वेस्ट। सेम वे सीवेज, आज की डेट में सीवेज थोड़ा चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है इसमें म्युनिसिपल वेस्ट में। तो आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। यू कांट फीड कॉपर, लेड, ऑल दीज टाइप ऑफ मिनरल्स टू द सॉइल विच आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है क्रॉप के अंदर, वो सॉइल से या फिर हवा से लेता है। तो कुछ म्युनिसिपल वेस्ट जो ऑर्गेनिक होता है, जो ग्रीन होता है, उसी को आप यूज करेंगे। यू नीड टू सेग्रीगेट द वेस्ट इन म्युनिसिपल एंड सीवेज। राइट। नेक्स्ट वन इज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के ऊपर आई विल हैव अ डिफरेंट सेशन, पूरा बायो फर्टिलाइजर के ऊपर करेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर जितनी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे आप मेन्योर्स की बात कर लें, चाहे आप वेस्ट की बात कर लें, सीवेज वेस्ट की बात कर लें, तो बायो फर्टिलाइजर्स में एक खास चीज जो इसको मेन्योर से अलग बनाती है इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। राइट। तो किसी भी फर्टिलाइजर में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हो रहे हैं और वो उस फर्टिलाइजर की न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, राइट, सो हाउ दे इंक्रीज इट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट दोज मेन्योर्स। अगर आप डंग की भी बात करें, अगर आपने डंग, काउ डंग लिया है बहुत सारा और उसका स्लरी बना लिया है पानी ऐड करके और कुछ दिन उसको छोड़ दीजिए, तो उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्दी बैक्टीरियाज उसमें जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे और वो उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ाएंगे, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाएंगे, अमोनिया रिलीज करेंगे, वो सारी चीजें क्रॉप को रिक्वायर्ड होती है। राइट। तो विद द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स you generally produce biofertilizers, right? I will have a different session on biofertilizers which will be required for PT also. So next one is biopesticides. Biopesticides generally include, first of all, biopesticides natural plants भी हो सकते हैं, ठीक है? So plants can also be bio pesticides. Then we have many secondary biopesticides like alkaloids, right? Alkaloids, and then we have terpenoids. Okay, then we have some minor chemicals, जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिकली सॉइल को हार्म नहीं करेंगे, बट yes, they will increase the fertility and as well as they will keep away the pest। कुछ खास कीड़ों को मारने के लिए भी, जैसे आप नीम ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है, तो नीम ऑयल इज बेसिकली एल्कलॉइड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपकी हेल्प करेंगे। तो बायो पेस्टिसाइड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन लास्टली वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फार्मिंग, इफ यू टॉक अबाउट बायोलॉजिकल फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बायोलॉजिकल फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे तो वर्मी कंपोस्ट जरूर लिखेंगे। और इसका न्यूट्रिएंट जो होता है,
न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है वो बाकी सारे फर्टिलाइजर से ज्यादा होता है। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है? जैसे आपने बायो फर्टिलाइजर बनाया, आपने एक स्लरी बना लिया, ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करके, लाइफ स्टॉक के फीसेस यूज करके आपने एक स्लरी बना लिया, उसके बाद आप उसमें वर्म्स को ऐड करते हैं, ठीक है? वर्म्स को ऐड करते हैं बाहर से, ठीक है? और उसको एक्ट करने देते हैं फॉर 48 आवर्स, 48 24 आवर्स टू 48 आवर्स। आप वर्म्स को, जो जो कीड़े होते हैं, जो छोटे छोटे जिनको बोलते हैं आप सुड़ियां होती हैं, उनको आप उसमें डाल देते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे उस पर काम करते हैं, उसको खाते हैं, और जो उनके वेस्टेज होते हैं, जो उनकी फीसेस होती है वर्म्स की, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं फॉर प्लांट्स, राइट? तो वर्मी कंपोस्ट बनता है जब आप आपके बायो फर्टिलाइजर में वर्म्स को ऐड करते हैं बाहर से, और उसको उसको ऐड करने देते हैं फॉर ऑलमोस्ट 24 टू 48 आवर्स। उसके बाद ये जो वर्मी कंपोस्ट बना है, दिस विल बी सुप्रीम बायो फर्टिलाइजर फॉर द क्रॉप्स, राइट? नाउ these were the components. Next, we'll come to the opportunities in organic farming. Very, very important. What opportunities are there in organic farming? So, first one, if you see, is the conservation perspective. Conservation perspective में you have soil fertility stability. Soil fertility stability, हमारे देश में soil fertility का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, soil fertility is decreasing. So in that case, अगर आप organic farming use करते हैं तो soil fertility stable रहेगी. Next one is biodiversity conservation. Obviously, biodiversity conservation is not limited to the not just the microbes or bacterias, but biodiversity conservation has also something to do with mammals like mules, donkeys. Acha, what is the difference between mule and donkey? See, what is a mule and what is a donkey? So donkey is pure donkey, right? Okay. A mule is a hybrid of donkey and a horse, right? So when the female donkey, right, mates with a horse, okay, so male horse, then you what offspring you get is mule. And when the male donkey, sorry, when the male donkey mates with the female horse, you get a mule. And when a male horse mates with a female donkey, you get a hinny. ठीक है? जब मेल हॉर्स होगा और फीमेल डोंकी होगी, तो यू विल गेट अ हिनी ऑफस्प्रिंग। और म्यूल होगा जब फीमेल हॉर्स होगा, और आपका जो मेल होगा वो डोंकी होगा, तो यू विल गेट अ ऑफस्प्रिंग म्यूल, ठीक है? और डोंकी तो डोंकी है, खच्चर, ठीक है, गधा, राइट? So all these mammals can be used in organic farming, जो कि स्मॉल फार्मर जो उसके पास उतना नहीं है या लैंडलेस भी है और वो रेंट पे टेनेंट की तरह फार्मिंग करता है, तो उनके लिए ये सारे मैमल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप इनका यूज करना शुरू करते हैं। बाय सेविंग ऑन दी अदर फ्रंट्स, राइट? बहुत सारे फ्रंट्स पे आप काफी कुछ सेव कर लेते हैं, इस फ्रंट पे भी आप सेविंग करेंगे तो ये छोटे फार्म्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है? और इसमें ऐसे जो मैमल्स होते हैं इनकी डाइवर्सिटी बढ़ती है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, अगर आप फर्टिलाइजर्स नेचुरल यूज करते हैं, तो जो भी आप क्रॉप उगाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होगा, उसमें क्या होगा, कार्बन इनटेक होगा बाहर से, राइट? तो जब आप कार्बन की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट के अंदर, वो आप बाय फर्टिलाइजर नहीं पूरी करते हैं, वो आप किसी और सोर्स से पूरा नहीं करते हैं। जब वो प्लांट एनवायरनमेंट की कार्बन खींचता है, उसको अब्सॉर्ब करता है और उससे खाना बनाता है, तो फिर वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाता है, राइट? तो एनवायरनमेंट की जो कार्बन है, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है, तो उसको प्लांट तभी खींचेगा जब आप उसका कार्बन का जो रिक्वायरमेंट है वो फर्टिलाइजर्स वगैरह से पूरा नहीं करेंगे, एंड यू विल लेट द प्लांट और द क्रॉप टू intake that carbon from environment, from air and from the soil, uh, and this will be a cleaning mechanism for environment, ठीक है? तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यहाँ से होगा। रिड्यूस्ड एनर्जी डिपेंडेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो यू विल बी रिक्वायर्ड लेस ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन, यू विल बी रिक्वायर्ड लेस ऑफ पेस्टिसाइड प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो बैक एंड पे भी
आपके बहुत सारे एनर्जी बचती है, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन बचता है, आप मैनुअली उसको जनरेट कर सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर को, बायो फर्टिलाइजर को, एंड यू कैन जनरेट मैनुअली दी पेस्टिसाइड्स एज वेल। ओके, सो फॉसिल फ्यूल का जो आपका कंजम्पशन है वो हर फ्रंट पे कम हो जाता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन आर फार्मर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारे फार्मर्स नहीं है, बट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की फॉरेन में डिमांड बहुत है, ओवरसीज डिमांड, ठीक है, ओवरसीज डिमांड बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, तो उससे आपका फार्मर जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी होगा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसमें आप यूज करेंगे तो उससे भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क कम होता है इस केस में क्योंकि इनपुट्स बहुत कम होते हैं, तो इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा, तो अगर कम दाम भी मिलते हैं किसी कारण की वजह से मार्केट में, तो उसमें भी जो फार्मर है वो सरवाइव कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, राइट। तो मार्केट रिस्क से तब आप ज्यादा इफेक्टेड होते हैं जब आपकी इनपुट कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, और इनपुट कॉस्ट कब हाई होती है, जब आप आर्टिफिशियल इनपुट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैवी होगा, व्हाई, बिकॉज अगर आप नेचुरल इनपुट्स का यूज करेंगे तो उनको बनाने के लिए यू विल बी नीडिंग मोर पीपल, more hands will be needed to make biopesticides, more hands will be needed to make biofertilizers, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगेगा। ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेंगे तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, राइट। एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अगेन कॉस्ट कम है, इनपुट कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, बेटर प्राइसेस मिल पाएंगे फार्मर्स को, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो पाएगी तो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फॉर द फाइनेंसेस ऑफ अ फार्मर, तो वो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में फार्मर विल विन, ठीक है। नाउ कंस्ट्रेंट्स, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट, तो पहला कंस्ट्रेंट तो है एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट, वाटर क्वालिटी, हमारे यहाँ पर ग्राउंड वाटर क्वालिटी ऑलरेडी इंडस्ट्रीज पुअर सीवेज मैनेजमेंट की वजह से खराब है, ठीक है। जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज है और ई वेस्ट एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो वाटर क्वालिटी हमारी इसलिए खराब है ये सारी वजहों की वजह से, ठीक है। तो इसमें ये सारे कारण बनेंगे, तो वाटर क्वालिटी खराब होने की वजह से अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जाते हैं तो फार्मर को यही क्या बोलते हैं खतरा होता है, रिस्क होता है कि जो पानी नीचे है, जो ग्राउंड वाटर है या जो पानी वो लगा रहा है, उसमें इतना ज्यादा हार्डनेस है, उसमें इतना ज्यादा मिनरल कंटेंट है, उसमें इतने ज्यादा हार्मफुल मिनरल्स है कि उसकी जो क्रॉप है वो बर्बाद हो सकती है। एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, अगेन सेम, जितना भी बायो एक्यूमुलेशन होता है वो फार्म में ही होता है, राइट, और उसका हेल्थ पे सीधा असर पड़ता है। नेक्स्ट इज रिसोर्स नीड एंड सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, आपका सर्टिफिकेशन फॉर एक्सपोर्ट, आप तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जब आपको 3 साल का ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस हो, राइट। अगर किसी फार्मर को 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, और तभी उसका माल एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, सोशल एक्सेप्टेंस एंड दैट इज प्रॉपर नॉलेज नहीं है हमारे यहाँ फार्मर्स को, कन्वेंशनल फार्मिंग को वो बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल फार्मिंग एक हावी है सर पे, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हावी है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें थी ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे सामने। आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और बायो फर्टिलाइजर्स में किसी और दिन स्पेसिफिकली लेक्चर में ले लूंगा, ठीक है। सो दैट वाज इट, द टाइम इज गेटिंग ओवर, गुड बाय।